بتا دیں آپ کرنے سے پہلے ایک بات میں بھی لاسٹ کرنا چاہوں گا. یہ ایک بات میں بالکل کرنا بھول گیا تھا عمران خان کے حوالے سے. جانے سے پہلے دیکھیں اس نے کیا ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا, جو اس نے اسلامک سمٹ 2 بار بلائی تھی. بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے بھٹو کو اس لیے نکالا گیا تھا, اس نے وہ آئی پاکستان میں کرا دی تھی, وہ پاکستان میں لے کے آتا. تو جو لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ خیال کے اندر, تو وہ عمران خان اس کو باہر لے کے آیا, اور جو 70 کی پالیٹکس تھی اس نے دوبارہ زندہ کی. تیمور بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو یہ بات آپ نے کی نا, میں یہ بھی بات بتاتا چلوں, جو بھٹو کو لٹکایا گیا نا, اس میں یہ بھی وجہ تھی کہ بھٹو نے جو پاکستان کو تروانے میں اس کا رول تھا, سوٹ تو وہ کرتا تھا امریکن کو. جو اس نے او آئی سی کا جو اجلاس پاکستان میں بلوایا, اور اس نے کہا دیانی کو جو پاکستان آپ کو ہوتا ہے, وہ سارا اس نے کام کیا. وہ اس کے پھندے میں بہت بڑا کردار تھا, اس کو پھانسی اس لیے دلوائی گئی تھی. میرے خیال سے تیمور بھائی اس سے بھی بڑا کام جو نا عمران خان نے جو کیا تھا نا, وہ سیرت کانفرنس کا کیا تھا. اس کی وجہ سے ان کو اور خطرہ ہو گیا تھا. وہ جو سیرت کانفرنس ہے نا, وہ پاکستان میں ریئل اسلام کو پھیلانے کی ایک بہت بڑی مدد تھی, کیونکہ ہم لوگ اتنے ڈیورژن میں تھے. اس نے سارے علماؤں کو ایک جگہ پہ بلا کے ایک کر رہا تھا, تو وہ بھی بڑا خطرہ تھا کہ کوئی اصلی اسلام نہ آ جائے پاکستان میں, تو سارے ملائے جو ہے نا آپ کے سابقہ سفیر جو ہے امریکہ میں, انہوں نے جب انٹرویو دیا تھا سی این این کو, تو اس نے بولا تھا کہ سر آپ کو عمران خان چاہیے جو کہ تصویر پڑھتا ہے, یا کا نابود یا کا نستعین پڑھتا ہے. تو وہ یہی بتانا چاہ رہا تھا ٹی وی کے اوپر بیٹھا کہ یہ بندہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, یہ تھوڑا اسلامکسٹ ہے. یہ سابقہ سفیر جو کیا وہ پاکستان, مجھے نام اس کا بھول گیا, وہ سی این این کو ایک انٹرویو میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہ تصویر پڑھتا کی ہے. بات کر رہے ہیں. ہاں جی, اس نے یہ بولا ہوا انٹرویو میں. تو عمران خان کے متعلق بہت سے لوگوں کو پرابلمس تھی. وہ بندہ نا کرپٹ سسٹم کے اوپر سوٹ نہیں تھا کرتا. سر بس میں جانے سے پہلے یہ بتاتا ہوں, کہوں گا کہ بس یہ اللہ کی, میری علیمہ خان سے بھی بات ہوتی ہے اور اس سے بھی بات ہوئی تھی. میں نے ان کو بولا تھا کہ یہ عمران خان ہماری بچوں کی آنے والے دوروں کی کتابوں میں لکھا جائے گا. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر فراز ان کے جانے کے بعد اگر آیا تو کیا آیا, کہ اگر ہوتے ہوئے کسی کو ہوش نہیں آئے قوم کو, تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. ابھی بھی ہوش نہیں آیا تو کیا آیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ سب لفاظی باتیں ہماری, ہم لوگ بعد میں جا کے اگر کوئی بھٹو بنا دیں کسی کو بھی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی زندہ ہے بھائی, تو ابھی بھی کھڑے ہو جاؤ, ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو, ابھی بھی اپنے آپ کو کھڑا کر لو. ہمارے پاس ایک یہ لاسٹ چانس ہے خالی. فراز بھائی, اشفاق احمد صاحب نے بولا تھا نا کہ جس دن پاکستان میں جو ریلی ہوتی ہے نا, وہ جنازوں سے بڑی ہوگی نا, پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے. بے شک بے شک بے شک. اوکے جی, السلام علیکم سب کو جی. اچھا, بہرحال بڑی زبردست گفتگو کی چوہے صاحب فراز بھائی نے, تو مجھے تو بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. ایک تو ان کے پاس جو بھی بات کرتے تھے اور بڑی نالجیبل بات, تو میں نے تو بڑا انجوائے کیا گفتگو. ہوپ آپ سب نے بھی انجوائے کی ہوگی. تو جی تیمور بھائی مائک اوپن کریں آپ اپنا. جی سر. اچھا, تو اچھا, ان فراز بھائی کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہے. ہاں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ جب بھی ہماری ٹیم پوری ہو, سب بھائی موجود ہوں, تو پلیز چکر لگاتے رہا کریں. میری ان کے ساتھ کوئی گپ شپ نہیں ہے, میں نے ان کو ابھی فالو کیا ہے. تو پہلی دفعہ ہی براڈ پہ آئے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باتیں شاتیں نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا اچھی انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور اچھی اس ٹائم پہ اچھی چلی. دیکھیں ٹائم دیا, یو کے میں ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے, صبح کے 5:12 ہوئے ہیں. تو دیکھیں نا, تو یہ بات ہے. آپ تو سعودی عرب میں ہے نا؟ نہیں, میں یو اے میں ہوں. ہمارا بھی ابھی صبح مارننگ 9:12 ہو گئے. ابھی آپ نے کام شروع بھی کرنا ہے, دکان کھولنی ہے؟ نہیں, دکان نہیں کھولنی, بس ڈیوٹی پہ ہی ہے. ہماری نائٹ کی شفٹ ہوتی ہے, تو اس لیے پورا ٹائم. اچھا, زبردست. نائٹ شفٹ کا میں خود ابھی کام پہ ہوں. ابھی میں بھی گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں. اچھا, ہاں,
थोड़े टाइम में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, कल हमारी बड़ी जबरदस्त बात हो रही थी वो पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में। हाँ, ये खुरम भाई करेंगे इस बारे में। खुरम भाई बात कर रहे थे, तो वो बाद में मैंने जाके सर्च किया है, वो उसका नाम है CM302 और दूसरे का नाम है CM400 और वो जो चाइनीज वेरिएंट है उसका YK समथिंग है, YK12 है मेरा ख्याल है उसका नाम, ये YH है, YK12, तो सुपरसोनिक है। और फिर ये अपना भी एक बना रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल। मजे की बात है, हाइपरसोनिक जो है वो अमेरिका के पास भी नहीं है, उन्होंने कभी बनाने की कोशिश नहीं की, अब वो शुरू हुए हैं। अच्छा, ये मैं सिर्फ आज तक अमेरिका देखूंगा, और चाइना के अपना मैं चाइना और रशिया के चेक करूंगा, पास मैं है। आपको कल बताऊंगा इसके बारे में कि पाकिस्तान को ठीक है, तो वो जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा बनाने की उसका नाम था P282। तो इन्होंने चाइना से मांगा भाई हमें दे दो टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा यार ये काम नहीं हो सकता, आप हर चीज भेज देते हो अमेरिका के आगे, तो अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, अपने तौर पे बना सकते हो तो बना लो। और बाकी ऐसे है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ये सिर्फ उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका ने इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी दी हुई है, मतलब जो बैड़ी बेड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी, और 2 वो बना चुके हैं, तीसरा उनका तकरीबन तैयार है। तो जिस हिसाब से वो बना रहे हैं उनको खतरा ये था, उस जमाने में तो खैर हम भी समझते थे वो इंडिया दुश्मन है, लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, तो ये उसको मैच करते होते थे स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो बात ऐसी थी कि वो कह रहे थे आपके कराची को हम ब्लॉकेड कर देंगे। वो याद है ना, उनकी सबमरीन्स आती होती थी ऐसे डुबकी लगा के ऊपर आके दिखाती होती थी कि भाई हमें सब पता है, हमने ग्वादर भी देखा हुआ है। तो वो इन्होंने उस ज़माने में लिया था कि यार अगर इनका एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी ट्रेड बंद कर दे, शहर है कि कराची, उधर से अगर हमारी ट्रेड बंद, हम क्या करेंगे। तो वहाँ से फिर चाइना ने इनकी मदद की थी, इनको सुपरसोनिक मिसाइल दिए थे। और हाँ, एक इन्होंने सब सोनिक खुद भी बनाया हुआ है, उसका नाम है उसका नाम क्या है यार, अपना H से शुरू होता है, हरबा। तो वो तो ये ऑफर कर रहे हैं उसको भी, कतर को भी, कि भाई आप भी ले लो, आपको हम बना के देंगे, आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। मतलब हालात ये आ गए कि ये मिसाइल बेच रहे हैं दुनिया को कि यार कहीं से पैसे आ जाए हमारे, वो भी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, मिसाइल नहीं। चाइना आपको मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, वो आपको मिसाइल बेचता है। वो जो 2 उन्होंने सुपरसोनिक दिए थे, 100 मिलियन की डील की थी उन्होंने, तो 600 मिसाइल उन्होंने दिए हुए इनको, या 60 दिए कुछ नहीं। अगर मैं अपने आप को सही कर लेता हूँ, अगर आप कह रहे हैं सही तो ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कल होती है मुलाकात। ठीक है ओके जनाब। जफर भाई वेलकम जी। आप बहुत लेट आपने ज्वाइन किए, तो सबसे पहले तो आपको सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं तकरीबन आधी रात तो सुनता रहा हूँ नीचे बैठ के। ये अभी खुरम भाई चले गए, इनको पता है कि वो इजाज़ मलिक साहब वाली ब्रोड बहुत लंबी चली, तो उसको अच्छा। सारा दिन चलाता रहा। फिर वो हमारे मुर्शद भाई हैं, तो उन्होंने मुझे लाइव ले लिया अपने चैनल पे, तो मैं वहाँ पे प्रोग्राम करने बैठ गया। तो इस वजह से मैं थका बहुत ज़्यादा था, मैं नीचे आके सुन रहा था आप लोगों को मुसलसल। बल्कि जब बात हो रही थी रेमिटेंस की और खालिद भाई कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को अलविदा किया, तकरीबन 1 बजे के करीब नियर अबाउट। तो क्या हाल हवाल है, सब ठीक हैं जी? तमूर भाई, आबद भाई तो सो चुके होंगे। चोई साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, सब ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई आप सुनाएं, थके जी लग रहे हैं। नहीं, मैं अभी सोया उठा हूँ, अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने ऑन किया है, तो देखा है कि अक्सर आबद भाई की इस वक्त जो ब्रोड है ना, अकेले चल रही होती है। वो खराटे मार रहे होते हैं इस वक्त। जी, वो मैंने कहा कि मैं ना नीचे अक्सर लिख दिया करता हूँ कोई ना कोई कमेंट ना, लोग बैठे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं, शायद कोई किसी को उठाएं या बात करें, तो मैं लिख दिया करता हूँ कि वो सो चुके हैं, आप आराम से जाके ख़ुद भी इंजॉय करें। तो अभी मैंने जब डिस्कशन सुनी तो मैं नीचे बैठ गया, तो मैंने कहा चले सुनते हैं। तो इनकी तस्वीर ही लिया है छोटे भाई की, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना उनको कमेंट कर दूं कि ज़बरदस्त, उनको पता चल जाएगा आबद भाई तो सोए हुए हैं, तो ज़बरदस्त के अभी तक बैठे हैं आप लोग। तो बहुत शुक्रिया ऊपर लेने का भी मानी जी।
वेलकम ब्रदर, आप भी आए ऊपर। तो सिचुएशन रात की सब कोई सामने ही है, सारी बातें तो हो चुकी होंगी, लेकिन चोई साहब से पूछूंगा कि चोई साहब रात को फिर लोगों को उठवाने की कोशिश की गई है, उनको हाँ वापस जी कोयटा जफर भाई, भेजने। उन्होंने जो अपना काम करना था, दिखाना था जी, रैली निकल गई है, बहुत ज्यादा लोग आए थे। मैं रात को भी आपको पता यही बात की थी कि ये कितने अरसे से ये मसला चल रहा है बलोचिस्तान का, जब से पाकिस्तान बना है तब से लगा ले। भुट्टी के दौर में, अकबर भुट्टी के दौर में ये ज्यादा तूल पकड़ गया। तो सर तब ये इन्होंने हजार, मैं कहता हूँ हजारों सैकड़ों चेक पोस्ट हैं, उसको क्रॉस करके ये इन्होंने इधर भिजवाया इस्लामाबाद में। एक बंदा जो है उसको अपने हलके से, ये सर इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उधर तक तो जाने दे नहीं रहे। तो स्पेशली मैं, हमारी हमदर्दी बलोची लोगों के साथ है, वो हमारी बहनें, माओ बहनों की इज्जतें साझी होती हैं। वो बात एक तरफ उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो धरना अभी इस्लामाबाद में क्रिएट किया गया है, सम हो आप भी इस बात को समझते हैं कि इमरान खान का जो इशू है वो बहुत ज्यादा हाइप पकड़ गया हुआ है। तो उसको जेर करने के लिए, वो कहते हैं ना, सांप को जब डर लगता है ना, वो अपने आप को खाना शुरू कर देता है। तो ये इतना डर गया है उस चीज से कि इन्होंने अपना नुकसान इनको करना पड़े ना, ये वो भी करने के लिए तैयार है। अगर नवाज शरीफ को इस बार अपने रिश्तेदारों को मरवाना पड़ेगा ना, वो मरवा देगा। उनको मरवा के ये जो इशू है ये दब जाए, खान का जो इतनी हाई क्रिएट की हो गई है, इसको दबाया जाए। तो ये चीज भी समझने की जरूरत है। हमदर्दी है उस हमें रैली से बलोची बहनों के साथ, लेकिन इसमें जो अंदर खाते गेम है ना, वो खान साहब के इशू से तवज्जो हटाने के लिए आज मैंने दो न्यूज लिखी हुई है। एक वो शफकत ईवान है, वो बेचारा गया इलेक्शन उधर अपने कागज जमा करवाने, रिटर्निंग ऑफिसर ताला लगा के चला गया। फिर एक और पर सरूर से हमारे हलाक साहब शायद, उनको उन्होंने बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तो ये तमाशा लगा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रही, इतना नंगे हो गए हैं कि भाई इन्होंने अब नाचना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में भी बात करनी थी। मैं तो ये बात करता हूँ जफर भाई। सर आपके सियालकोट में जो रात को तमाशा हुआ है वो आपने शायद पढ़ लिया होगा, वो एडवोकेट सईद है शायद, उनके हाँ घर जी, पे जो तोड़ फोड़ हाँ, की है। तोड़ फोड़ किया आ, इन्होंने, सईद जी बल्ली। जी, सईद बल्ली। तो हाँ, सिचुएशन यहाँ तक ख़राब कर दी हुई है कि किसी की चादर चार दीवारी जो है ना वो महफूज नहीं है। कि अंदर गए हैं, आप लोगों ने शायद फुटेज देखी हो कि कैसे वो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, कैसे तोड़ फोड़ करके आए हैं। फिर एक हो और है बंदा, वो भी कसूर से है, उसके घर पे दावा बोल दिया है ये मैं कि उन्हीं की बात कर रहा था, वो वकील भी है, वो जी जी, कागजाती वो तो नामजदगी कल जमा कर उनको गिरफ्तार कर कल लिया। उनका उनका कल का था ना। एक और कल एक जो मतलब है कि पीटीआई का पुराना रहनुमा है, लेकिन वो कभी सामने इतना नहीं आया, फर्स्ट टाइम उसने ट्राई की है, तो उस पे भी इन लोगों ने हमला कर दिया है। अब अल्लाह ताला इनको हदायत दे। तो और बाकी तो बाकी क्योंकि हम लोग तो अभी ज्वाइन करके बैठे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शाम को जो हम लोगों ने लाइव सेशन किया उसमें जो हमारे सवालात थे उस पर हल्की हल्की डिस्कशन हो सकती है। आज वज़ीराबाद में ज़िली कन्वेंशन है, शेर अफजल मरवत साहब आ रहे हैं, तो इस पे भी हमें चाहिए कि हम ग्राउंड लेवल पे अपने ख़ानदानों, अपने बहन भाइयों, दोस्तों को मोटिवेट करें कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। मेहमान आ रहा है, लास्ट टाइम मेहमान को पकड़वा दिया गया था। हमारी एक कोई रीति रिवाजी है, उसके मुताबिक भी हमें चाहिए कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो भी वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से आए, और साथ में इस कन्वेंशन को कामयाब भी करवाया जाए। तो चोई साहब, आप सियालकोट के इलाके से हैं, आपको क्या लगता है जी सियालकोट साथ देगा? जफर भाई, मैं आपको बताऊं, मैं सिटीज की जो बात है ना, सिटीज के जो लोग हैं ना, वो आपको पता है, वो डिफरेंट तरीके से चलते हैं। वो इस तरीके से चलते हैं, नॉर्मल सी रैली निकाल ली, ठीक है, पोस्टर वगैरह उठा लिए। जो आपको रेजिस्टेंस देगा ना बंदा, जो लड़ेगा, अपना क्या कहता है, छोटे मोटे भी खा लेगा, वो आपका देहात से, वो आपका कह लें जो वर्कर है। लेकिन उस वर्कर को निकालने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ता है। उस वर्कर को मसले मसाइल है, अपने रोजगार के मसले मसाइल है,
वो वर्कर किस तरह बात करता है, वो वर्कर ये भी बात करता है जी इसको तो भाई हमारे इस बंदे को तो पुलिस ने उठा लिया, इसने हमारी क्या हिफाजत करनी है, वो ये भी बात करता है। वो वर्कर ये भी बात करता है जी ये मेरा हल्का है, ठीक है, इसमें ये बंदा मुझे कभी नजर नहीं आया। मैं आपको अपने हल्के की बता देता हूँ बात। अभी जो नून लीग के एमएनए है ना चौधरी इमरान सबानी, वो इतनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हर शादी पे जा रहा है, हर जनाजे पे, हर जगह वो पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा उस हल्के में लीडरशिप ना होने के बराबर है। तो उधर का जो वर्क है ना, उसकी एक मेंटेलिटी है, वो चीज याद रखता है, यार ये बंदा मेरे शादी पे आया था, वो जाता है मेन यूनियन काउंसिल के मेन बंदे की बेटे की शादी पे चला जाता है। वो यूनियन काउंसिल का जो बंदा होता है मेन, वो उसके नीचे कम से कम को 2-3 हजार वोटर होता है उसके नीचे, वो उसकी आवाज पे लबैक कहता है। मैं मानता हूँ खान साहब की पॉपुलैरिटी, मैं इस चीज से इनहराफ नहीं करता, लेकिन जो रियलिटी बेस्ड चीजें हैं, देहातों की चीजें हैं, दे सम हो डिफरेंट। उधर का वर्कर जो अभी वजीराबाद में आ रहे हैं ना बरवा साहब, मैं दुआ करता हूँ लोग बाहर आए, कोशिश करें, वो हमारा मेहमान है, उसको पूरी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जफर भाई, इसमें हमारी जो लोकल लीडरशिप है ना, वो ना होने का बराबर है, वो वर्कर को उस तरह चार्ज नहीं कर पा रही। मैं फहीम भाई से हर दफ़ा देहात की बात करता हूँ, विलेज की बात करता हूँ, उधर के वोटर को आपकी सपोर्टर है, उधर के जो हल्के में जो सीटें दी जा रही है ना, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाए। नून लीग वाले ये भी बगैरती कर रहे हैं, वो जानबूझ के उस वोटर को सीट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को, जो कि बड़ा ही कमजोर होगा, बहुत कमजोर होगा। चले, क्या उसके बहुत शुक्रिया अस्सलाम चोई साहब, वालेकुम। थोड़ा सा वालेकुम मैं सलाम, थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक एक था। मिनट लेना चाहूँगा सिर्फ, ज़फ़र जी भाई। जी 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 ये ज़रूर। सीएम मैं भाई ने जो बात की ना, 100% यही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात की है और सो आने बात की है कि ये अभी मैं अपने हल्के की बात करता हूँ कि हम मेरे हल्के से 30 लड़के ना अभी 9 मई के वाक़यात के बाद अभी वो रिहा होके आए हैं। बड़ा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो डरे हुए हैं, और उनके कारोबार वगैरह सब कुछ मतलब धर्म भरम हुए हुए हैं, बिल्कुल मतलब किसी की वो काबिल नहीं है। और हम तंजीम भी हमारी इस तरह जिस तरह सपोर्ट करनी चाहिए उस तरह उनकी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही। इस मामले में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, वरना ये छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर करेंगे तो बहुत नुकसान होगा जी। जी बहुत शुक्रिया। नॉर्मली तो जहाँ तक देखा जाए तो लीडरशिप या तो अंडरग्राउंड है या वो पकड़े गए हैं, वो भी प्रेशर के अंदर है, कुछ को ज़िंदगी और मौत की धमकियाँ हैं। तो लिहाजा कौम को तो खुद ही निकलना पड़ेगा। जो कौमें बनती हैं वो लीडर का इंतज़ार नहीं करती। खान साहब ने तकरीबन हर इशू पे बात कर दी हुई है, लोगों को जो है वो शौर दे दिया हुआ है। अगर आज भी कौम नहीं निकल पाती, अभी भी यही लॉजिक है कि जो कमज़ोर लीडरशिप और आवाम डरी हुई है, तो फिर इस आवाम का, इस कौम का बनना मुझे नज़र नहीं आता। तैमूर भाई, ओवर टू यू सर, आप क्या कहेंगे? पंजाब में पहली कन्वेंशन कामयाब हो पाएगी? शेर अफजल मरवत को वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो उसको खैबर पख्तूनख्वा ने दिया? आई थिंक तमूर भाई बिजी और हैं। बिजी हैं, चलें ठीक हो गया। फिर आप बोले हैं, वो पंजाबी का मुहावरा है ना, आ जेड़ा गया बोले जेड़ा तमूर भाई, बोले। जी 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 तमूर तैमूर भाई, भाई। ओवर टू यू। जी तमूर। जी सर, एक सेकंड। तैमूर इस टाइम आपको पता है बच्चे सो रहे होते हैं। मेरे भी सोए हुए हैं, याद है। अच्छा अच्छा, इस टाइम ज़रा ध्यान से बात करनी पड़ती है। अच्छा जी सर, किस मौजू पे पीछे बात हो जो रही है एसी अभी? वाला कमरा है उधर चले जाए ना। बस अच्छा नहीं, बा तो यार वो ठंडा होगा उधर, फिर वो आग जलानी पड़ेगी। अच्छा बात हो रही थी पंजाब में फर्स्ट कन्वेंशन की, जो ज़िली कन्वेंशन हो रही है, तरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो तो हमें नज़र आ रही है 1995 पे जा रही है।
جی کیا وہ کھل کے شیر افضل مروت صاحب کو ویلکم کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کنونشن کامیاب ہو پائے گی؟ شیر افضل مروت صاحب کو وہی رسپانس مل پائے گا جو ان کو خیبر پختونخوا نے دیا؟ جی سر پنجاب کو میرے خیال میں کنونشن کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کو ضرورت ہے جو آپ کے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی، کیونکہ جو آپ کے صوبائی حلقے ہیں ان پہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے دے رہے ہیں، اور جو آپ کا جاتا ہے قومی حلقے کے اوپر اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ کنونشن کر بھی لے، جتنا مرضی کنونشن کر لے، ان کی آپ چال سمجھیں وہ کر کیا رہے ہیں، ہم نے اس کا توڑ نکالنا ہے. کنونشن سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ حل ہوگا جب، میں نے تو پہلے کہا تھا کچھ مہینے پہلے کہ ایسا کریں گے، یہ بندے اغوا کریں گے، کیونکہ الیکشن تو ان کو کروانے پڑیں گے. تو یا ان سے پریس کانفرنسیں کروائیں گے یہ، اور یا ان کے، اب دیکھیں نا ان کے کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگ رہے ہیں. مطلب یہ مذاق ہو رہا ہے. تو اس کا مجھے نہیں پتا اس کا کیا علاج ہے، لیکن اگر آپ کے بندوں کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکیں گے تو الیکشن خاک جیتیں گے ہم لوگ. تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے میرا تو یہی تھا آئیڈیا کہ یار 400-500 بندے لڑا کے ساتھ لے کے جانے چاہیے، تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو چھیننے کی. مشہوری خود بخود ہو جاتی ہے جب وہ ڈنڈے ان کے پاس پی ٹی آئی کے جھنڈے ہوں گے. تو باقی کنونشن لگے رہیں گے ساتھ میں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تھینک یو. جی بیسیکلی جب یہ کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں، ان کاغذات کی جو نامزدگی ہے اس کے لیے بیسیکلی پارٹی کا کہنا یا کچھ ایسا ویسا نام لینا تو ضروری نہیں ہے. وہ کل ایک بات بھی میں نے کی دوسری بروڈ پہ، وہ ملک صاحب کی بروڈ پہ، اس وقت میں نے وہ ٹویٹ پڑھا، اس کو ری ٹویٹ بھی کافی صحافیوں نے کیا. اٹس مین کہ وہ اتھینٹک تھا، جس میں صدیق جان ہے اس نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو. تو وہ لڑکی لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں واپٹا کے آفس گئی ہوئی تھی، اور واپٹا کا آفس الیکشن کمیشن کا آفس پاس ہے. تو جب میں اپنی فائل لے کے واپٹا والی باہر نکلی، جب میں پہنچی الیکشن کمیشن کے سامنے، تو وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا تھا، وہ میری فائل چھین کے بھاگ گیا. اب اس پاگل کو کیا پتہ ہے کہ یہ تو میری بجلی کی فائل ہے. وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی نئے چہرے آ رہے ہیں ان سے فائلیں چھین رہے ہیں، ان کے پیپر پھاڑ رہے ہیں. لیکن آپ کو انشاءاللہ ایک خوشی ہوگی جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو کافی لوگوں کے پیپر جمع ہو چکے ہوں گے، کیونکہ تقریباً 3 لیئر جو ہے اس کے پیپر جمع کروائے گئے ہیں. خان صاحب کی انشاءاللہ آج جمع ہوں گے. کل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جیسے اغوا کیا گیا رائے کھرل صاحب کو، وہ گئے تھے سائن لینے 3 حلقوں کے، 2 حلقوں کے سائن کروا کے انہوں نے دیے، ایک کے نہیں دیے، لاہور اور میاں والی کے. اور اتنی دیر 6 گھنٹے بٹھانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو کن علاقوں میں الاؤ کیا جائے. جہاں پہ 2 پہ ہو گیا تو تیسرے پہ کیوں نہیں ہونے دیے. تو باقی جی مانی جی اوور ٹو یو، کیا کہیں گے پنجاب کی کنونشن پہ؟ بالکل ظفر بھائی، میں اس چیز کو آگے مزید لے کے جاؤں گا. دیکھیں آج کا دن جو ہے نا وہ میرے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ دن ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو آج کا جو پورے پاکستان میں شور پڑا ہوا تھا نا کہ پنجاب نہیں نکلتا، پنجاب یہ ہے وہ ہے، آج اگر جو کنونشن ہے نا وہ ساری چیز ڈیفائن کرے گا. نمبر 1 چیز. نمبر 2، ہمارا آج جو ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے سبمیشن کا. تو یہ 2 چیزیں آج جو ہے وہ بہت بڑی ہونے والی ہیں، اور اس دن پہ آئی تھنک آگے ہمارا فیوچر ہے. اوور ٹو یو ظفر بھائی. بہت پیاری بات کی. آج پنجاب دکھائے گا کہ آج اگر نہیں نکلتا تو ہمیں نہیں لگتا کہ پھر ووٹ والے دن بھی وہ اسی وجہ سے نکل پائیں کہ جی ڈر ہے، خوف ہے. اگر آج خوف کے بت توڑ دیے گئے، آج پنجاب نے رسپانس دے دیا گیا، تو یہ جو بار بار سننے میں آتا ہے نا ہم الیکشن میں دیکھیں گے، الیکشن میں دیکھیں گے، وہ تو ہر بندہ یہ بھی کہتا ہے آئی ول سی یو ان دا کورٹ. لیکن کورٹ بھی ویسی تو پھر الیکشن بھی مجھے لگتا ہے ویسا ہی ہوگا. آج پنجاب کو رسپانس دینا چاہیے. لیبر بھائی اگر آپ اس پہ رسپانس کرنا چاہیں، کیونکہ آپ نے شارٹ بات کیا تو ضرور کریں، باقی سوالات پھر دوبارہ آپ کے لیے سامنے رکھتا ہوں. میرا تو نظریہ یہی ہے کہ یہ جیسے ریاست فل اپنی جبر اور بندوق کے زور کے اوپر جو کام کر رہی ہیں، سب سے زیادہ اس ٹائم جو زور جبر کا اور ظلم کا نظام چل رہا ہے وہ پنجاب میں چل رہا ہے. تو میرا خیال سے یہ نہیں ہونے دیں گے.
اور ہمیں پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی یہی حرکتیں کریں گے. تو ان کا جو مقابلہ ہمیں جس طرح یہ کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں گے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، پھر ہی یہ لیول پہ آ کے مذاکرات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوگا کوئی حل. شکریہ جی. میرا اگلا سوال ہے چوئی صاحب سے کہ چوئی صاحب اس پہ کیا رسپانس کرتے ہیں. چوئی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس آسٹریلیا میں اس وقت اچھا خاصا ٹائم ہوا ہے، آپ تو سو نہیں رہے ہوں گے، تو اس لیے میرے خیال ہے متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی 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 اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے قاضی فراڈ کے پاس ایک درخواست گئی ہے، اور قاضی فراڈ جو ہے وہ تو گیا ہوا ہے چھٹیوں پہ، چھٹیوں کرسمس کی چھٹیاں گزارنے، کہ جس جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ چرچ بنا وہ ہے فلسطین کا علاقہ جہاں پہ یہ لڑائی بھی چل رہی ہے کرسچن، یہودیت اور مسلمان کی. وہاں پہ تو اس سال کرسمس منایا نہیں جا رہا، اور یورپ کے اندر بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں یا کسی ملک کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں مناتے. تو اس کو کون سا ایسا کرسمس آیا ہوا ہے کہ یہ چھٹیوں پہ چلا گیا ہے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست ہے آپ وہ سنے گا، وہ ایک ناانصافی جو طارق مسعود ہے، جو ہر عمل سے ثابت کر رہا ہے عامر فاروق کی طرح کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی امید ہے عدالت سے کہ شاید کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ یا ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان پہ وہ بات کریں نگران حکومت کے ساتھ؟ جی جی ظفر بھائی، سوال آپ نے بڑا زبردست کیا ہے. دیکھیں، میں پاکستان کی 2 عدالتیں ہیں، ایک پشاور، ایک لاہور ہائی کورٹ. ان 2 عدالتوں سے آپ دیکھ بھی رہیں گے پی ٹی اے کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کی وجہ، اس کا ریلیف دینے کا یہ وجہ ہے کہ ادھر نا پی ٹی اے لائرز جو ہیں ان کی ایسوسیشنز بہت سٹرونگ ہے، بلکہ پوری پاکستان میں جو لائر کی ایسوسیشن ہے وہ لاہور کے اندر سٹرونگ ہے. اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ سو کچھ فیصلے اچھے دے رہی ہے. وہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ادھر جیسا ہمارا کلچر ہے، کنونشن بھی اچھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ اجازت دی جا رہی ہے. تو میں تو مجھے تو کوئی رتی بڑھ بھی ان سے انصاف کی توقع نہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. میں عدالتوں سے زیادہ بات کرتا ہی نہیں. جی چوئی صاحب میرا حال مصروف ہو گئے. جی بہت شکریہ جی. تیمور بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کائنڈلی آپ میوٹ کھول کے بتا دیں. اور میں صرف لیبر بھائی کو بتا دوں وہ کرسچن نہیں ہے، کرسچن تو بہت ایماندار ہے، کیونکہ ہم یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو انصاف کا بول بالا ہے. جس ملک کے اندر میں مقیم ہوں آسٹریا کے اندر، یہاں پہ ایک عام انسان کا اور وزیر اعظم کا سیم رائٹ ہے. اس کی مثال میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ان جیسے لوگوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. جی تیمور بھائی اوور ٹو یو. کیا بات ہو رہی ہے سر یہ قاضی کے بارے میں؟ جی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سر جی انصاف نے ایک لیول درخواست دیکھیں، کی ہے. لیول کو کیا ہم درخواست دینی ہے، وہ ان کو کہیں یار ہمیں بس ایک جگہ دے دو، لیول ہم خود کر لیں گے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ نواز شریف کے ٹوٹکے، اس کے پاس تو جانا بھی نہیں چاہیے. بھئی یہ عجیب سا لفظ استعمال کریں لیول پلینگ فیلڈ. سچی بات کریں یار، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں کاغذات نہیں جمع کرانے دیے جا رہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے، لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ ماؤں بہنوں کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی عصمت دری کر رہے ہیں. یہ ہم کوئی مقبوضہ پاکستان میں رہتے ہیں؟ یہ چکر کیا ہو رہا ہے؟ تو باقی وہ ایسا بندہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے وہ قاضی بن کے، تو اس کے علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، وہ بلوچستان سے دھرنے دینے آ رہے ہیں. جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ بھی ادھر کا ہی ہے، بلوچستان کا. یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. ہر بندے کا دل ہے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے ہو جائے، تو وہ مذاق چل رہا ہے سر. لیول پلینگ فیلڈ شیلڈ انہوں نے کوئی نہیں دینی آپ کو، الیکشن چھیننے پڑیں گے. اگر عوام میں ہمت ہوئی تو چھین لے گی، نہیں تو پھر بیٹھیں آرام سے. ہاں بعد میں تحریک چلانے کی بات ہے، اگر ہمت ہوئی تحریک چلانے کی، اگر ہار بھی جاتے ہیں انہوں نے چھین لی ہم سے، تو ویسے تو اتنی بڑی اگر ہماری ہے سپورٹ 90% تک، تو الیکشن آنا ہمارے اوپر لعنت ہے ٹو بی فیئر. تو جو تیمور مرضی بھائی
तैमूर भाई ये तो आज डिसाइड होगा कन्वेंशन के अंदर कि आवाम निकलती है कि नहीं निकलती। अगर आज नहीं निकलती तो वोटिंग वाले दिन भी इन लोगों के अंदर यही खौफ होगा, कहीं हम पोलिंग स्टेशन पे गए तो वहाँ पे हमें मारा ना जाए, तशद्दुद ना किया जाए। तो वो दिन तो ज़्यादा खौफ का दिन होता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ौज भी होती है, पुलिस भी होती है। अगर आज कन्वेंशन में लोग नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा 90% है, अदरवाइज़ आप सिर्फ सोशल मीडिया के 90% पे यकीन रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो दरख्वास्त दी गई है, बेसिकली उसमें यही सब कुछ मेंशन किया गया है। जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उस पे बात होगी। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है उस पे अगर कोई देख भाल कर सकता है तो वो अदालत है, अदालती निज़ाम है। लेकिन आइन ही नहीं है तो क्या उम्मीद इनसे। बहरहाल फिर भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं लेबर भाई का। जी, ओवर टू यू सर। जफ़र भाई, मैंने तो ये चीज़ देखी है कि ये जिस तरह जबर कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, इनसे मुज़ाकरात उसी टाइम होंगे जब हम इस उनके लेवल में आएंगे। हमें भी जब वो हथियार उठाएंगे, उनके घरों में घुसेंगे, तो फिर जाके ये मुज़ाकरात पे आएंगे। उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। जी, मैं बस यही कहना चाहता जी, मानी भाई से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर हमारे दो भाई हमारे से और जुड़ चुके हैं, उनसे भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी जी तैमूर भाई, जो सॉरी जफर भाई, जो तैमूर भाई ने बात की है कि जो डरने वाली बात उन्होंने की है कि काजी भी अपना और जो है ना वो एक उनके इलाके से लोग उठ के आ रहे हैं, उनको ये इंसाफ नहीं दे सके तो पूरे मुल्क को क्या देंगे। मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लिटरली इनसे कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। तो बाकी हालात आपके सामने हैं, किसी को भी, सिर्फ मुझे नहीं, जो इस टाइम सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की, किसी को भी। आज मैं एक मिनट। जी मानी भाई, क्योंकि ड्यूटी भी साथ साथ में कर रहे हैं तो इसलिए तो मेरे साथ जो फर्स्ट जुड़े हैं वो मेरा हाल है अशफाकियो, कोई पूरा नाम मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि पूरी स्पेलिंग। अच्छा, अशफाकियो खान। जी, ओवर टू यू सर। आज की अच्छा, अच्छा करें सॉरी बात आप मन। सॉरी जी जी सॉरी जफर भाई। अच्छा, मैं आज वो ट्विटर पे देख रहा था कि एक साफ़ी ने उस ट्वीट लगाई हुई थी यार कि आपको इस अदालती निज़ाम पे कितने परसेंट यकीन है, ठीक है। तो उस पे एक पोल बना हुआ था, 5%, 10%, 15% और 20%। और फिर उस पे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पोल किया हुआ था वो था 5%, 96% लोगों ने, और इस पे 50K कमेंट्स हुए हुए थे। तो ये पूरे मुल्क की यही सिचुएशन है। ओवर टू यू जफर भाई। बहुत शुक्रिया जी। अशफाक खान साहब, ओवर टू यू प्लीज़, आप बात करें। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच ज़फ़र भाई, आपने लाइव में ऐड किया और बोलने का मौका दिया। मैं यही कहूँगा कि जैसे कि तैमूर भाई ने कहा था कि इलेक्शन अगर हम हार जाते हैं या मतलब हमें मौका नहीं दिया जाता, वो तो अभी क्लियर कट है कि जो भी मतलब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा है पीटीए का लीडर, उसको वो उसे छीन रहे हैं और उसको बिल्कुल मतलब मौका नहीं दे रहे। तो इससे तो बिल्कुल यही ज़ाहिर होता है कि जो भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि कोई भी मतलब किसी को रेजिडेंस शो नहीं करने देनी। तो अब साफ नज़र आ रहा है कि जो भी मतलब नॉमिनेट करेगा, अपना फाइल करेगा, तो आवाम की जो रेजिडेंस शो कर रहे हैं वो केपी में ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब में वो अभी तक माहौल नहीं है। तो ये अलग बात है कि अगर कोई जैसे लीडर्स हैं वो भी अभी इतने खास तो नज़र नहीं आ रहे। वो अगर मतलब तहरीक को लीड करते हैं फिर ना कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। जी शिकागो भाई, ओवर टू यू सर। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरख्वास्त दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हेल्प आउट करेगी इन फसीयत के माहौल में पीटीआई को? थैंक यू वेरी मच जफ़र भाई, और तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो है ना अपना जो कुछ आप बात कर रहे हैं, मैं इससे ऊपर की बात करता हूँ कि आप ये देखें कि इसको हैंडल कौन कर रहा है। इसको जो है ना अपना पीछे से कौन इसकी डोरियां चला रहे हैं। हमारे ये जो जर्नल बैठे हुए हैं, इनके हैंडलर्स जो है ना वो बाहर हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, क्या हमारे जो इस वक्त चीफ बने हैं, चीफ जस्टिस साहब, क्या ये क्वेश्चन है कि ये गए हुए हैं अपना
क्रिसमस मनाने। नाम तो इनका मुसलमानों वाला है, और मेरे ख्याल से इनके जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी जो है ना मुसलमान ही लिखा होगा, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी लग रही हैं कि ये अपना मुसलमानों वाली हरकतें तो लग नहीं रही। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि अपना इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो जो हो रहा है उसके मुताबिक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से हमें जो है ना एज ए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या कैंडिडेट्स को जो है ना कहीं से कुछ इंसाफ मिलेगा। और अभी भाई ने बात की कि यार ये आज का जो वर्कर कन्वेंशन है वज़ीराबाद का, ये वो करेगा, बता देगा कि पंजाब की जो है ना वो झुकाव किस तरफ है। तो मेरे भाई पंजाब का झुकाव जो है वो भी पीटीआई की तरफ ही है, लेकिन मसला ये है कि जो पिछले 75 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों ने जिस दर्द और तकलीफ़ में गुजारे हैं, वो उस वजह से उठे हैं कि उन्होंने वो तमाम चीज़ें देख ली हैं कि जो उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद और इस किस्म की जो है ना उनके ऊपर जो पिछले 70-75 सालों के अंदर उनके ऊपर गुजरा है। बात आ गई पंजाब के ऊपर। पंजाब को इन्होंने ऐसे रखा हुआ था कि जैसे दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। पंजाब बिल्कुल उसके अंदर जो है ना सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा है जी, कोई मसला ही नहीं जी। आप दहशतगर्द बना रहे हैं पठानों को, दहशतगर्द बना रहे हैं बलूचियों को, ठीक है ना। तो पंजाब के लोग जो थे वो ठीक है, आप जो कह रहे हो सही। लेकिन अब जब पंजाब के ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं और पंजाब के लोगों के ऊपर जो है ना अपना इन्होंने ये सारा वो चीज़ शुरू की है जो वहाँ पे थी और ये कर रहे थे और जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा पंजाब के लोगों को थोड़ा सा वो हुआ है कि यार नहीं यार, हम तो गलत थे। ये जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हमें बताया जा रहा था मीडिया के ऊपर या हमें किसी तरीके से जो है ना ये पंप कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें गलत थी। ये तो हमारे साथ ही जो ना धोखा हो रहा है। लेकिन इसको अभी भी मेरे हिसाब से इसको, जिसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है इस तरह की, तो मेरे हिसाब से अभी भी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि लीडरशिप की अगर बात करें तो लीडरशिप कोई भी नहीं है। और आज जैसे जफ़र भाई आपने बात की थी कि जो है ना अपना कौमें जो खड़ी होती हैं वो बग़ैर लीडर के भी खड़ी हो जाती हैं। उसकी मिसाल सबसे बड़ी अभी जो ये जलसा हुआ है, ऑनलाइन जो जलसा हुआ है, तो इसकी मिसाल है कि इसमें भी तो लीडरशिप कोई नहीं थी ना। सारे रूपोश से सारे वो जो है ना इन्होंने सबको निकाला बाहर ला के, जो है उनको सिर्फ स्पीच ही की है इन्होंने, और क्या किया। तो कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ पर भी किसी बंदा कोई खड़ा हुआ तो नहीं था भाई। हमारे शिकागो में भी जो है ना बहुत बड़े यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, तो लीडरशिप तो कोई नहीं थी ना, खुद से लोग आए हैं, खुद से जो है ना उन्होंने किया। तो अब ये है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर, पंजाब के लोगों के अंदर मेरे हिसाब से आनी चाहिए। लोगों को जो है ना इसका जो है ना एहसास होना चाहिए कि यार हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े होने चाहिए। लेकिन ये कि इसको भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मसला ये है कि हम लोगों को आज़ादी का पता नहीं है। हमारे ख़ास जो लोग हैं ना उनको आज़ादी का पता नहीं कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है, आज़ादी कहते किसको है। वो जनाब वो चौधरी साहब हैं, वो मलक साहब हैं, वो खान साहब हैं, वो फलाना साहब हैं, भाई उनके पास चले जाओ काम हो जाएगा। हम समझते हैं आज़ादी ये है, आज़ादी ये नहीं है। आज़ादी आपको पता ही नहीं कि आज़ादी होती। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माजरत और इस चीज़ की अवेयरनेस जो है ना अभी टाइम लगेगा जी। वालेकुम सलाम फारूक जी जमील जी साहब, वेलकम। मैं सर माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। मैं वजीराबाद, आज कन्वेंशन है मरवत साहब की, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जी मरवत जी साहब से माशाल्लाह मेरा पैगाम, माशाल्लाह। यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है, रास्ते बंद कर दिए और मैंने फेसबुक पर भी वीडियो लगा दी है और टिकटॉक पर भी लगा रहा हूँ। और आप आवाज़ उठाएं जितना भी पंजाब के लोगों के लिए, अपने राब्ते करें व्हाट्सएप के थ्रू या जिस तरह भी, लोगों को हदायत करें कि पैदल निकलें, बाइक्स पर निकलें, गाड़ियों को छोड़ दें, पंजाब की कन्वेंशन को कामयाब करें। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इसके लिए ज़रा, मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब किया है जी। बहुत शुक्रिया।
गुज्जर साहब काइंडली हमें अपडेट करते रहिएगा। कोई मसला नहीं, हम थैंक यू सारी वेरी रात मच, से बहुत बहुत बैठे हुए हैं शुक्रिया। और इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम अपने लोगों को मोटिवेट कर सके। पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था कि पंजाब की जो फर्स्ट कन्वेंशन हो रही है उसको कैसे कामयाब किया जाए। तो काइंडली हमारे साथ टच रहिएगा, इस ब्रॉड के साथ टच रहिएगा। अगर मुमकिन हो तो अपडेट करते रहिएगा अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो से, ताकि हम लोग यहाँ जी पे उसको। जफर भाई, मैं अब इजाजत चाहता हूँ, मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता रहूंगा, जब जब मुझे टाइम मिला मैं ब्रॉड पे हाजिर होता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी ये तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये ज़रूर ज़ालमाना इक़दामात जो हैं वो उठाएंगे, और इतना जल्दी, क्योंकि 2 बजे की कन्वेंशन है और बहुत पहले ये शुरू कर दिया गया, तो इट्स मीन कि वो चाहते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे पहुँच ना पाए। तो आज पंजाबियों पे ये बात होगी कि वो कैसे इसको कामयाब करते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह रोका गया लेकिन उन लोगों ने कामयाब करके दिखाया। दूसरी बात ये कि हमारे इशफाक भाई दिख रहे थे कि वो सर्दियों की छुट्टियों पे गया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। भाई वो सर्दियों की छुट्टियां तो बाद में भी गुजार सकता था। अभी जिस वक्त मुल्क के अंदर इतना इंतशार हकूक़ इंसानियत की पामाली हो रही है, तो चीफ़ जस्टिस को अपनी सीट पे बैठना चाहिए था, उसको छुट्टियां कैंसिल करनी चाहिए थी। इस मीन कि वो सर्दियों की छुट्टियां नहीं मनाने गया, उसने एक सहूलत कारी की है इस्टेब्लिशमेंट की कि भाई कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आए। जो ये बंदा तारक मसूद है, जो उनका ख़ास बंदा है, बल्कि इसकी पता चला कि इसके बच्चों की वीडियोज़ हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट हुआ है। और ये बंदा है मार्च तक, ठीक है, मार्च के बाद इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो उसको ये बैठा के अपनी जगह पे गया है, क्योंकि मोस्ट सीनियर 3 जजेस में एक तो वो ख़ुद है, दूसरा ये तारक मसूद है, और तीसरी नंबर पे एजाजुल एहसन है। तो एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो अच्छी टिल रखते हैं तमाम पार्टियों के मुतल्लिक़, और वो नेचुरली जो एक फ़ैसला होता है वो देने की कोशिश करते हैं। तो उनको दबाने के लिए इसको बैठा के गए हैं। तो बहरहाल जी, छुट्टियां बनती नहीं थी इस वक्त पे जब इलेक्शन का दौरा हो और बहुत ही आवाम पे जो है वो जुल्म ढाया जा रहा हो। तो बाकी अगला मैं क्वेश्चन ये करूँगा कि खान साहब के, वो क्योंकि चॉइस साहब से शुरू होगा तो उन्हीं के इलाके की बात है, तो खान साहब के टाइगर्स तो डटे हुए हैं, वो जैसे कैसे भी अपने पेपर तो जो है वो जमा करवा रहे हैं। उस्मान डार की माँ पे तशद्दुद किया गया, ठीक है जी, और उसी के साथ बड़ा खुल के उस्मान डार ने फिर बयान दिया कि ख्वाजा आसफ़ को हम हर फील्ड में जो है नाकाम करेंगे, उसको इलेक्शन हराएंगे भी, और हम अपनी माँ के साथ डट के खड़े हैं। और ये भी पता चला है कि खान साहब ने वकला को कहा है कि अगर कोई जो इनरहाफ हुए थे, और आप देखते हैं कि वो बंदा प्रेशर में आकर उसने पार्टी को छोड़ा है, अगर वो आके सरेआम उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई की हमायत करता है तो हम उसको वापस भी लेंगे। तो जी अपना चोई साहब क्या देखते हैं सियालकोट को, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? चोई जफर भाई साहब। कोई साहब ने नीचे कमेंट किया है, वो बिजी हैं, तो तैमूर अच्छा, भाई ओके ओके ओके, तामुर भाई ओवर टू यू। अगर आपने क्वेश्चन सुन लिया है, वो भी मेरी तरह इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में बेचारे काम ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी इस्टेब्लिशमेंट इस आ गए वक्त अभी। वापस, जी जी। आ गए हैं वो वापस, उनसे पूछ लें आप। जी चोई साहब, अगर आप बात कर सकते हैं तो माइक खोल लें, अदरवाइज़ तैमूर भाई इसका आंसर कर देते हैं। बोलें जी तैमूर भाई, वो अगर मसरूफ़ ना हो तो वो उसी वक्त खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या आपका सवाल था, एक बार फिर रिपीट कर दें प्लीज़। जी सवाल यही था कि जैसे भी हालात हैं, पीटीआई टाइगर्स जा रहे हैं, अपने जो नामजदगी के पेपर हैं वो जमा करवा रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, जुल्म सितम भी हो रहा है, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं और वो जमा करवा रहे हैं। उस्मान डार की माँ पे इसी सिलसिले में उन्होंने दोबारा तशद्दुद भी किया, गिरबान भी चाक किया। उस्मान डार का फिर बयान आना कि हम ख्वाजा आसफ़ को हर तरह से नाकाम करेंगे, उसको इलेक्शन हराएंगे, हम अपनी माँ के साथ डट के खड़े हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक ऐसे वक्त में ऐसा चैलेंज, क्या उस्मान डार अब अशारों की बजाय साफ कह रहा है कि मेरे से तशद्दुद करके जो है वो इंटरव्यू भी लिया गया, और
آن گراؤنڈ سیالکوٹ کی آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لحاظ سے؟ سر سیالکوٹ کی وہی سچویشن ہے جو پورے پاکستان کی ہے اس وقت. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ اگر پی ٹی آئی کے کارکنان جمع بھی کرا دیتے ہیں اور ان کا نشان الاٹ ہو جاتا ہے اور یہ ان کو جمع کرانے سے نہیں روک سکتے، تو میں کہتا ہوں الیکشن ہم جیت چکے ہیں. ان کا پلان یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت سارے حلقوں میں بلا ہو ہی نا، خاص کر جو ہے نا قومی اسمبلی کے حلقے، اس میں یہ آپ کے ساتھ مسئلہ کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں ان کو تکلیف نہیں ہے، ان کو صرف قومی اسمبلی میں تکلیف ہے، اور اس کے لیے یہ جو حربہ ان کو مل رہا ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں. تو اب صرف یہ عثمان ڈار کی بات نہیں ہے، اور بھی کافی ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے مردوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، وہ خواتین اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم لڑیں گے الیکشن. لیکن یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر بھی تشدد کر رہے ہیں، ان کے گھر بھی توڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ عثمان ڈار کی والدہ بیچاری بوڑھی ضعیف عورت ہے، وہ خاتون دکھا رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، دیکھو میرا انہوں نے گربان چک کر دی ہے. تو ان کو شرم تو آنی نہیں ہے. تو ہم نے بھی ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، تگڑے کا راج ہے. اگر الیکشن جیتنا ہے تو تگڑا ہونا پڑے گا. الیکشن کرانا ان کی مجبوری ہے، وہاں سے اب یہ نہیں بھاگ سکتے، وہاں تک عمران خان ان کو لے آیا ہے. اب ہمارا کام ہے ووٹ ڈلوانے ہیں، جیت رہے. الیکشن ڈے پہ یہ دھاندلی نہیں کر سکتے، کریں گے دھاندلی لیکن اس لیول کی نہیں ہو سکتی کہ بھئی الیکشن ہی چوری ہو جائے. جو دھاندلی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. حلقہ بندیاں اتنے اپنے مرضی کی بنائی ہیں، انہوں نے سارے جو ہے نا الیکٹیبلز توڑے ہیں، ان لوگوں سے پریس کانفرنس کرائی ہیں، اور اب جو یہ کر رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دے رہے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں، ہر حلقے سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لڑے، ہر حلقے سے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایسے لوگ جیتیں گے جن کی کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا خان کا کھمبا بھی جیتے گا، وہ حساب ہوگا اس بار. تو بس میرا تو یہی ہے سر میسج کہ کسی نہ کسی طریقے سے کاغذات نامزدگی ٹائم پہ جمع کرائیں، اور تاکہ آپ کا نام ہو. بلہ بھی یہ دیں گے آپ کو، یہ جو ہے نا آپ کا نشان بلہ یہ آپ کو دیں گے، کسی کو اور کو نہیں دے سکتے. ان کی جو گیم چل رہی ہے وہ میرے پتے میں ہے ساری. تو باقی ہاں وہ جو جمیل گجر صاحب آئے تھے وہ بھی میرا خیال ہے کینڈیڈیٹ ہیں یا کیا چکر ہے ان کا؟ اگر وہ ہیں تو ان سے پوچھنا تھا ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. تھینک یو. جی ابھی وہ دوبارہ آتے ہیں تو یہ واقعی ایک کویسچن ان سے پوچھنے والا تھا، وہ آئے دوبارہ تو ان سے ضرور پوچھیں گے. جی ظفر ویسے بھائی ان کے ہو گئے ہیں، ان کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جی ہو گیا. بیسیکلی وہ اسی صوبائی طرح کہہ رہے ہیں. اسمبلی میں نہیں جی نہیں ان کے صوبائی اسمبلی کا ہے نا. صوبائی اسمبلی کے لیے. جی جی قومی والوں کی صوبائی، طرف سے. ہاں جی. تو باقی بہت زیادہ لوگ جمع کروا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جن پہ وہ ان کو شک ہے ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. بہت سے وکلاء ہیں جنہوں نے جمع کروائے ہیں سکروٹنی کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ اچھے کی امید ہے. لیکن یہ جو سننے میں بات آ رہی ہے نا، اگر پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ فیصلہ نہ دیتی کہ بھئی ایک دن کے اندر اندر فیصلہ دیں بیٹ کے اوپر جو آج انہوں نے دینا ہے، اگر وہ اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ وہ توہین عدالت کرتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے. باقی اگر وہ آج نہیں دیتے تو اٹس مین کہ وہ فیصلہ جو انہوں نے پہلے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ ان کو بیٹ کا نشان نہیں دینا، تو وہ نہیں دینے جا رہے. اور یہ بھی ہے، روس کلاسرا کو میں پسند تو نہیں کرتا، لیکن اس کی خبر تھی کہ ان کی کوشش ہے کہ ان کو گھڑی دی جائے، وہ آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کے سلسلے میں انسرٹ کرنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی نشان ہو پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دے، عوام سب جانتی ہے، تو انشاءاللہ طریق انصاف بھرپور انداز میں جو ہے وہ مقابلہ کرے گی. جی سی ایم بھائی کوئی صاحب اگر جی جی ظفر بھائی، دیکھیں آپ نے عثمان ڈار کی بات کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ گور بھائی کے براڈ پہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے عثمان ڈار نے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے تب بھی آپ کو بولا تھا کہ سر جو اس بندے کے ساتھ انہوں نے کر گزری ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی پوری سیالکوٹ کی فیملی، ایون کہ ان کی فیمیل جو کزنز ہیں سب کے ہسبینڈ انہوں نے اٹھائے حرامزادوں نے، ٹھیک ہے. اور جو عثمان ڈار کا ڈرائیور ہے، جب اس کو 3 دن یا 4 دن بعد انہوں نے چھوڑا تو اس کا بھی وہ بیچارے کو انٹرویو نہیں دینے دیا، یا وہ بیچارہ سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. اس نے بتایا جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان
के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद किया। मीनवाइल सियालकोट के अंदर इतनी इनके जितने कजन हैं उन सबको उठा लिया गया। आप देखें इस हलके पे क्यों ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हाजा असफ इसका बाप था, हाजा सफदर 1960 से अभी 2023 तक हाजा आसफ ये रामजादा इलेक्शन ही नहीं हारा। इसको इसके बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट में पैदा हुआ था, ठीक है। इवन के जब मुशर्रफ की कैबिनेट भी थी तो सर इसको ना समूह कंपनी की सरपरस्ती हासिल होती है। इसका जिधर घर है ना कैंट में, वो मेन छावनी है, फौजियों की छावनी जो थी कैंट एरिया। कहते हैं कि आधा आधा जब भी आता है ना सियालकोट में, ये आधा टाइम अपने घर रहता है और आधा घर ये कंपनी के पास रहता है, ठीक है। तो शुरू से ना इसको सपोर्ट रही कंपनी की। और आप देखिएगा इसका चक्कर ये है, जब भी गवर्नमेंट नून लीग की बनती है ना, इसको या तो डिफेंस मिनिस्ट्री मिलती है, यानी कि इसको मिलता जुलता एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक पोस्ट मिलती है। तो ये कंपनी का बंदा असल है उस हलके के अंदर। इस बंदे को कोई नकेल डाल सकता है ना, तो ये डार फैमिली थी। क्योंकि जो उस्मान डार का वालिद है ना, वो अलीम डार, वो साहब का तहसील नाज़म रह चुका है। उस्मान डार का भाई है उमर डार और इमरान डार, वो बड़े एक्टिव वो वर्कर है। और आपको पता होगा जो हान साहब ने बनाई थी एक तंजीम नौजवानों की ना पीटीए के अंदर, ये हान साहब उसके उस्मान डार उसके प्रेसिडेंट भी थे। तो ये ही बंदा हाजे को नकेल डाल सकता है इस हलके के अंदर। एक और बड़ा पुराना वर्कर है उमर उमर घुमन है शायद उसका नाम, वो उधर ही सियालकोट से, वो उस्मान डार से पहले से पीटीए के साथ है। लेकिन सर उस हलके के लिए, उस हलके में आपको तगड़ा बंदा चाहिए। ये सर मैं बात करूं 1975, ये रामजादा इलेक्शन ही नहीं हारता। इसका इतना होल्ड ओवर है। अब खान साहब की पॉपुलैरिटी है नो डाउट, तो लेकिन आपको सर एक लोकल मूड होता है हल्के का, लोकल मूड उस हल्के उस चीज के लिए आपको एक जबरदस्त तगड़ा बंदा चाहिए होता। और ये ही फैमिली है जो इसको पूरी नकेल डाल सकती है हल्के के अंदर। ये जो आजाद है, ये जिस हल्के से जफर भाई बिलोंग करता है, वो सारे उधर बिजनेस कम्युनिटी है। सारे जो बिजनेसमैन है, सनतकार है, वो इसकी जेब में है, ये उनके काम करवाता है। उधर फैक्ट्रियों का सिस्टम है, एक एक फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 7,000-8,000 बंदा काम करता है। वो फैक्ट्री ओनर कोशिश करते हैं उनको ना अपना जिधर उनका झुकाव होता है उस तरफ उनका वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ना सियालकोट एक सनती शहर है, चोई तो इस साहब वजह चोई से साहब जी चोई साहब इस सिचुएशन का तो हमें तकरीबन पता चल गया, ख़ास तौर पे सियालकोट हल्के का। हमें ये बता दें कि वहाँ पे टफ टाइम देंगे या एस्टेब्लिशमेंट लास्ट टाइम की तरह इसको जतवा लेगी। जफर भाई देखें, स्टैब्लिशमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है। आप देखें लास्ट टाइम पूरा फेयर इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, तब भी उस्मान डार जीत गया था, तो तब भी इसको जितवाया गया। आज आसम ने नेशनल टीवी चैनल के ऊपर माना भी था। 4 बजे उस्मान डार जीत रहा, 5 बजे जब अनाउंसमेंट हुई है जी हाज आसम जीत गया। अब तो सिचुएशन इतनी खराब है, जो मेन बंदे हैं ना कोर कमेटी के बंदे हैं नून लीग के, तो नून लीग वालों ने पूरी कोशिश करनी है कम से कम वो बंदे अपने हलकों से ना हारे। तो जो मैं तो उस हक में हूं ही नहीं। जो अभी पटिशन दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि जो प्रिजाइडिंग डीपीओ वो कागजाती नामजदगी जमा करवाने नहीं दे रहा, आप इस चीज की गारंटी दे ही नहीं सकते कि वो फेयर इलेक्शन करवा देगा। वो फेयर इलेक्शन नहीं करवाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन के नीचे हो रही है, या 25 दिसंबर को उनकी ट्रेनिंग आई थिंक कंप्लीट होनी है। तो उस्मान डार की वालदा ने जब ये बात चली, उसने जब ये अनाउंसमेंट की कि मैंने इलेक्शन लड़ना, साथ ही उसके घर में छापा डलवा दिया गया। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है, ये पहले इस चीज की छोटी दी जाए कि उस हलकों के अंदर, स्पेशल देहातों के अंदर जो हलके हैं, उधर आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फेयर होके, मैं बात करूं फेयर होके इलेक्शन करवाएंगे, तो फिर ये बात की जाए। पहले तो कागजात नामजदगी हमें वो उसकी इजाजत दें, फिर रिटर्निंग ऑफिसर फिर ईमानदारी के साथ जॉब करे तो फिर आपके अंदाजे के मुताबिक तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं फिर तो हम इलेक्शन हारे बैठे हैं।
चोई साहब ऐसे नहीं होगा, आप फ़िक्र ना करें। ये फ़ुआद हसन फ़ुआद और आहद चीमा के लगाए लोग हैं, लेकिन पब्लिक इनका मुकाबला करेगी, इसी वजह से वो डरे हुए हैं। मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि हाथ खड़ा किया हुआ है मानी भाई ने काफ़ी देर से, तो मैं उनको थोड़ा सा मौका दूं। जी मानी भाई, ओवर टू यू सर। जफर भाई यकीन करें मुझे बात ही भूल गई है तो ओवर टू यू। सॉरी सॉरी मानी भाई सही सॉरी। है, सही है तो चोई मैंने साहब, काफी आप देर पहले किया था, मुझे कोई बात कंटिन्यू याद आई थी तो फिर मुश्किल नहीं, कंटिन्यू आप करें, और यू टू नहीं, कंटिन्यू आपने करें रात की वजीराबाद ड्यूटी। की, जफर भाई जी वजीराबाद की बात की ना, जो कन्वेंशन हो रहा है, उन्होंने जो मेन रोड है ना, पेट्रोल स्टेशन बंद करवा दिए उधर, कि लोग पेट्रोल ना डलवा सकें। और जो आपको पता है अड्डे वगैरह है, उधर से कुछ जो गाड़ी उठा ली गई हैं कि लोग बसों में बढ़ बढ़ के ना जाए वजीराबाद की तरफ, लोकल ट्रैफिक नहीं दी जाने जा रही उधर। तो ये कैसे लोग निकलेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कंटेनर इन्होंने रख दिए हुए हैं। चोई साहब, थोड़ा सा अशफाक भाई की तरफ चलते हैं, लगता जी है वो खैबर अच्छा पख्तूनख्वा जी से भाई, अगर पहले जी तो मैं ये कहूंगा कि अपना खान साहब ने जो 3 हल्कों के कागज जमा करवाने थे, तो हाई कोर्ट ने अपना काफी देर पहले फैसला महफूज किया हुआ था, तो उसका फैसला उन्होंने एक सेकंड, जानबूझ के एक दिन पहले दिया। तजम्मल भाई अगर आप म्यूट कर लेंगे ना तो भाइयों को बोलने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं बोल, वालेकुम सलाम। तो आप म्यूट कर लें, आपको मौका हाँ, देते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत ओके शुक्रिया। ओके। जी अशफाक जी भाई। मैं ये कह रहा था कि खान साहब ने कल करवाए थे 3 करवाने थे, बल्कि 3 हल्के के उन्होंने कॉन्टेस्ट करना था इलेक्शन में। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया हुआ था महफूज, वो जानबूझ के उन्होंने डिले करके दिया ताकि खान साहब मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील ही ना कर सकें। और उसके बाद जो बल्ले का निशान का ताल्लुक है, वो किसी ने, पता नहीं एंकर ने किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था, शायद बैरिस्टर गौर थे पीटीआई के चेयरमैन या और किसी ने, कि अगर वो अपना आज इनका अलॉट नहीं होता बल्ले का निशान, तो फिर सारे जो भी तस्वर किए जाएंगे पीटीआई के, वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। उसका यही मतलब है कि जो कंपनी है वो अपने, जो अगर कोई बंदा पीटीआई के सपोर्ट से जीत भी जाएगा तो वो होंगे तो ऑब्वियसली आज़ाद ही होंगे, तो उसके बाद वो कंट्रोल में उन्हीं के आएंगे, कंपनी के कंट्रोल भी आएंगे। तो आपको पता है कि मतलब जो भी अभी भी कंट्रोल में आ गए थे पीटीआई के जो भी लीडर्स थे, या मतलब चंद एक, तो उस टाइम भी कंट्रोल में आ सकते हैं। और जहाँ तक सियालकोट का ताल्लुक है, अभी जो कंडीशन है मतलब ऑन द ग्राउंड पीटीआई की, वो तो ये है कि अवाम में इतनी पॉपुलर हो गई है कि किसी बंदे को अब बल्ले का निशान ना भी हो, या लीडर कोई भी हो, जैसे उसकी उस्मान डार की वालदा कंटेस्ट कर रही हैं, तो वो तो ज़ाहिरी बात है जो भी इमरान खान को या पीटीआई का होगा, ज़ाहिरी बात है उस वो ही जीतेगा। तो बाकी सियालकोट का अगर धांधली वगैरह नहीं होती, ख्वाजा आसिफ को इलीगली सपोर्ट नहीं किया जाता, तो ऑब्वियस थिंग है कि वो रियाना डार जीत जाएंगी। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जी। शिकागो भाई, ओवर टू यू सर। मैं बड़ी देर से जो है ना, थैंक यू वेरी मच, आपने जो है ना मुझे टाइम दिया। बड़ी देर से मैं सुन रहा था। मुझे एक कहीं किसी प्लॉट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक बात हुई थी जो मुझे बड़ा, जिसने बहुत ज़्यादा तशवीश में जो है ना डाल दिया। और ये जो कुछ अभी जो कागजात नामजदगी के बारे में जो कुछ सुन रहे हैं, ये भी, और आगे जो वोटर्स जो हैं उनके सुना है कि शनाख्ती कार्ड तक जो है ना उनके वो कैंसिल कर रहे हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर, जैसे किसी हलके के अंदर अगर पीटीआई की जो है वोटर्स वो देखते हैं कि ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इनका जो है ना अपना शनाख्ती कार्ड में कोई रद्द बदल करें या शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें, या जब वो वोट डालने के लिए जाएं। तो ऐसे सुना था कि यहाँ से कोई अमेरिका से कुछ ऐसे जो है ना इन्होंने कोई मशीनें मंगवाई हैं जो है ना ये करेंगी कि आप जिस वक्त वोट डालने के लिए जाएंगे तो जैसी उसका करेंगे, और उसके बाद में जो है ना अगर उसमें कुछ भी मसला हुआ तो वो बता देगी मशीन के भाई इसके अंदर मसला है, तो वहाँ पे आप फिर वोट नहीं डाल सकेंगे। ये मेरे ख्याल से इनका जो है ना इलेक्शन वाले दिन की ये कार्रवाई है इनकी, कि इलेक्शन वाले दिन हमने जो है ना ये कार्रवाई करनी है।
کہ جن حلقوں کے اندر جو ہے نا زیادہ پی ٹی آئی کا زور ہوگا یا پی ٹی آئی کے جو ہے نا زیادہ ووٹرز ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ اس قسم کی حرکت کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک اطلاع میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. اور باقی ابھی آپ لوگوں نے بات کی کہ جو ہے اپنا کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے. میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ کیسے جو ہے نا یہ اس کو کیسے مینج کیا جائے گا, کیونکہ ایوری